स्टार्ट कर लूं क्लास। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। ये जो लास्ट की हमारी क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने लेट अस गिव ए रिव्यू ऑफ द लास्ट वीक क्लास। द बेसिक ऑफ द क्लास वाज टू गेट introduction about e-resources. E-resources are basically the container of the knowledge either placed on a remote server, so it would be the kind of online where you need surely internet to retrieve that knowledge, to retrieve that content. Either it may be a text, it may be a video, or it may be anything else. But in case of offline e-resource, which may be in terms of floppy, CD, cassette, DVD, DVR, etc. So they don't need to have internet, but with the help of direction of the computers and computing device like iPod, mobile, etc., you can access that e-resource. So any knowledge house, it may be an educational institute or university, it has one measuring point that what are the e-resources that is available for its researcher, for its students. So particularly in this class, we are here to highlight the creation and development of e-resources, because in the last three previous classes, we have uh, enlightened ourselves to get the detail about e-resources, how the categories of e-resources, how you access these resources. Particularly, I would like to highlight the role of search engine to access, to retrieve the e-resources. So, but one thing, today's session, because the chat box was not opened for the last class. So this question I want to know the answer of this question, because the two questions for the last day, it was very simple question. So today I will just keep track of the time and then include the answer of this question from your side of the e-resource machine. It was latex, either Memex or Telex, or the last option is syntax. So this is the so this was the question. When you are getting acquisition means when you are getting a lot of e-resources, lot of content from the e-resources, maybe from online or offline. So to manage it, you need certain tools. In beginning, you may be having some counted number of research paper in terms of e-resources, but when your research will take a speed, you will be getting a bunch of research paper, a lot of e-content, and then कहाँ से आपको कितना मैटर लेना है, या किसी भी रिसर्च आर्टिकल, ई रिसर्च पेपर, रिसर्च जर्नल में कोई भी आर्टिकल या कोई सिनॉप्सिस लिखने के लिए आपने कहाँ कहाँ का से कंटेंट लिया हुआ है, किन पैराग्राफ में, किन रेफरेंस, रियल रेफरेंशियल आपका आपका रिसोर्स क्या रहा है, ये पता लगाना, ये कीप ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल होगा. Normally 99%, 95 to 99% people do this job manual.
and that's why they do mistakes. When questions are asked about your resource, e-resource or bibliography are about references, so you feel problem to answer properly because of the two reason. One thing, you have not done the things in a standard way, and the second, a lot of e-content which, because your your coursework, your complete duration of the research is not one semester program. It is a 3 or 4 year program. So meanwhile, a lot of updates would be coming on that e-resource. So you have to keep track for all those things, and that's why I have requested you. I have advised you to learn and use desktop Mendeley desktop. Now, if anyone of you is willing to implement and just create your own e-resource, यानी अभी तो हम लोग right now we are talking about to retrieval and acquisition of the e-resource. ये e-resources जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या इंटरनेशनल लेवल पर जेस्टर ने या बहुत सारे और एजेंसीज हैं, इंडावी ने, किसी ने, शोध गंगा ने, ई शोध ग्रंथ ने, जिस भी अथॉरिटी ने ये सारे ई कंटेंट, ये सारे नॉलेज आपके लिए रखा हुआ है इन फॉर्म ऑफ ई बुक्स, इन फॉर्म ऑफ ई रिपोर्ट्स, ई सर्वे, in form of electronic document, online databases, warehouses, and many other, maybe many other more uh, options. So how they would have made it? If some of you would have to assign some sort of the job to create, to empower and explore these e-resources, either in your institution, in your college, in your university, or anywhere else where you are uh, just targeting to work. So how you will create your, how you will reach, how you will make reach, how you will make reach the e-resources of your institution. So I have told you that you take the help of certain tools, जिसको हमने कहा था some programming languages, और उनमें से क्या क्या थे? You can recall very simply. You need two things. First of all, you need a markup language, because you know that markup language are basically the uh, diaphragm, are basically they are the churches, they are the structure जहां पर हम ई रिसोर्सेस को रखेंगे. एंड इन किस तरह से आप ई रिसोर्सेस को रखते हैं? यू नो दैट दे आर जस्ट द पेजेज, they are the rich pages, they are not the pages like the pages of a book or a magazine. Rather than that, they are the pages of a web, they are web pages. Now how these web pages you can make? I have introduced about you certain tags, HTML tags, certain tags of markup language, XML language, that is extended markup language, and SGML, standard and generalized markup language. So we take the help of certain markup language. There are a lot of markup language like PHP, like Ajax, like BioJava, and many more are there, which you find. If some of you, I am trying to highlight that if some of you are even new and very unknown to these commands, to these tags of the markup language, then they also can develop the e-content, the e-resource with the same pace, equivalent to a MCA programmer. Why? Because there are some other tools. If you are writing a simple letter, text, any para on Word or any editing software, parallelly the e-content, parallelly the e-resource, parallelly its web page can be created without any programming. The software tools automatically does its web formatting. यानी उनके सारे के सारे टैग्स, टेक्स्ट टैग के जो कमांड है वो खुद ही आपका जो टूल होगा वो लगाएगा. बट अगर आप अपने से कस्टमाइज मोड में
पर्सनलाइज मोड में अगर आप ई रिसोर्सेज डेवलप करना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम। तो मैं टूल का नाम आपको बता दूं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। द टूल इज फ्रंट पेज। आप जो भी वर्ड में टाइप करते हैं, फ्रंट पेज पैरेलली उन सारे कंटेंट को वेब इनेबल्ड कर देता है। आप उसका इंटरनेट वर्जन देख सकते हैं, आप उसका वेब एडिटिंग वर्जन देख सकते हैं। तो दिस इज द सिंपल थिंग। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि केवल पेजेज लिखने से आपका ई कंटेंट नहीं बनेगा। बेसिकली जो आपका ऑनलाइन रिसर्च जर्नल है, जिसमें बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, या कोई ई बुक है, या कोई ई थीसिस है, या कोई प्रिंटेड पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की कोई भी ई कंटेंट है, इट मे बी इन फॉर्मेट ऑफ ए बुक, जर्नल और एनी मैगजीन। इंटरनेट पर आपने उसको रिच टेक्स्ट, जैसे हमारे प्लेन पेजेज होते हैं वैसे ही रिच पेजेज होंगे, बट उन पेजेज पर देयर वुड बी इमेज, देयर मे बी बैकग्राउंड, देयर वुड बी एनिमेशन, देयर वुड बी सम वर्क, जॉब वर्क, प्रैक्टिकल वर्क। जैसे कोई बुक में आप कभी भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं दिखा सकते हैं, कभी भी कोई एक्शन नहीं शो कर सकते हैं। इट इज ओनली प्रिंटेड मटेरियल। बट ऑन द ई बुक जो आपका पेज है, रिच टेक्स्ट जिसको मैं बोल रहा हूं, उसमें आप किसी एक्टिविटी को भी शो कर सकते हैं। आप सोलर इक्लिप्स दिखा सकते हैं, आप अर्थ का माने जो प्लैनेट्स का मूवमेंट, सोलर सिस्टम को मूविंग सोलर सिस्टम को दिखा सकते हैं। आप केमिस्ट्री के किसी लेबोरेटरी का प्रैक्टिकल होता हुआ दिखा सकते हैं। इवन दैट टाइप ऑफ वीडियो, दैट टाइप ऑफ एनिमेशन एंड क्रिएटिव वीडियोज यू कैन हैव देयर। आप अब उनके लिए टैग है, हमने आपसे शेयर किया हुआ उन टैग को बनाने के लिए। और दूसरी चीज हमने आपको बताया कि इन टैग्स को मैंने जो आपने पेज बना लिया अपने ई रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, तो उन सारे पेजेज को आप एक दूसरे से लिंक भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंकर कमांड, एंकर टैग। दे आर नोन एज लिंक, दे मे आल्सो बी नोन एज hyperlink and bookmark. Now, what is the difference between these three? We have already discussed in the last session. But any of you, if you feel any difficulty practically, then also you can come and I will how the link and hyperlink for the various causes are made. अब मैं आपको ये भी बताया था कि आप अपने ईमेल की लिंक बना सकते हैं, जिससे कोई रिस्पांस अगर आप कोई सर्वे कर रहे हैं, उस सर्वे में 50 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स जिस सीट पे आएंगे, जिस फॉर्म में आएंगे, उस पूरे फॉर्म को आप अपने ईमेल से लिंक कर सकते हैं। तो केवल आप एक फॉर्म का टेम्पलेट डिजाइन करिए और शेयर कर दीजिए उन्हें, या तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, या शेयर कर दीजिए आप अलग अलग इंडिविजुअल्स को ईमेल आईडी पर। उनके जो रिस्पॉन्सेस आएंगे डायरेक्टली आप उन्हें ईमेल पर माने यू कैन गेट द इक्विजिशन, आप उनको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये पर्पज है ऑनलाइन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, या ऑनलाइन रिसोर्सेज को अचीव करने के लिए। नाउ जो हमारा आज का मेन मोटो ये है कि हमारे पास ऑलरेडी लेट अस सपोज हमारे पास है कंटेंट, ई रिसोर्स है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस ई रिसोर्स को हम वेब इनेबल कैसे करेंगे, यानी हम इसको ऑनलाइन दुनिया में कैसे पब्लिश करेंगे, जिसको हमने हेडिंग दिया है। आप देखिए आज की हेडिंग, होस्टिंग ई रिसोर्सेज टू द www वो डायफ्राम है, वो कंसोर्टियम है जहां आप वेब पेजेस को होस्ट करते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स, कैसे ये काम होगा? सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, अपना वेब पेज बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी रिसोर्स, कोई भी ऑनलाइन रिसोर्स बहुत सारे वेब पेजेज का एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की वेब पेजेज या ई रिसोर्स के बारे में देखें, देन या हम अगर किसी ई बुक को देखें, तो व्हाट इज बेसिकली ई बुक? इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ए लॉट ऑफ पेजेज फॉर द वेरियस चैप्टर्स। अगर वो किसी प्ले या नॉवेल की ई बुक है, तो वो बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं, जो बहुत सारे टाइटल के टॉपिक्स हैं, उनके जो चैप्टर्स का एक कलेक्शन है। अब उन कलेक्शंस को आप कैसे
कंसाइज करेंगे, इनसाइट्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपने एक कंटेंट पेज, हर बुक में आपको कंटेंट पेज या मैगजीन में, जर्नल में दिख जाएगा। तो यहाँ पर भी कंटेंट पेज का आइडिया है, लेकिन हमारा केवल नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स पेज। वी विल मेक द इंडेक्स पेज, यानी हमने अगर कोई ऐसा पेज बनाया है, जैसे इंट्रोडक्शन नाम का कोई पेज बनाया है और उसमें अगर 10 पेज है, तो वो 10 पेज को जोड़ने के लिए एक आपका हाइपरलिंक हो जाएगा इंट्रोडक्शन के नाम से। अगर आपने कोई रिसर्च पेपर, अगर आपने उसमें लिटरेचर रिव्यू 3 पेज में किया है या 5 पेज में किया है, तो वो जो 5 अलग-अलग पेज आप बनाएँगे वेब पेज पर, वेब पेज के एचटीएमएल पेज के, तो उन पांचों पेज को लिंक करने के लिए हम एक हाइपरलिंक या एक, माने हम एचटीएमएल का एक लिंक बना ले रहे हैं। वो लिंक कहाँ बनेगी? इंडेक्स पेज पर। तो इस तरीके से इंडेक्स पेज हम लोग बनाते हैं, और इंडेक्स पेज कुछ नहीं होता है। इंडेक्स पेज ये मान के चलिए कि सभी आगे के जो पेजेज हैं आपके ई बुक में या ई रिसर्च पेपर में या ई सिनॉप्सिस में या ई थीसिस में, उनको जोड़ने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए केवल जो आपने लिंक और हाइपर लिंक बना रखा है, उन्हीं उसी पेज को, एक ऐसा पेज जिसपे कि सारे ये लिंक बने हुए हैं, सारे हाइपर लिंक बने हुए हैं, उनको हम कह रहे हैं इंडेक्स पेज। तो अगर मैं किसी थीसिस का इंडेक्स पेज बनाऊंगा, तो उसके लास्ट में देखिए बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस होते हैं, तो हम वहां रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी को बनाएंगे लिंक या हाइपर लिंक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो हम उन सभी अपने रेफरेंसेस और रिसोर्सेस को देख पाएंगे, जो बुक्स, मैगजीन, जर्नल्स आपने रिफर किए हुए हैं। जब मैं उसको क्लिक करूंगा, तो वो 20-25 जो पेजेस होंगे मुझे ऑनलाइन दिखने लगेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्राउजिंग। और वहां याद रखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राउजिंग, मैं ब्राउजर की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ। ब्राउजर क्या करते हैं आपको मालूम है, जैसे नेटस्केप नेविगेटर है या नोवेल नेटवेयर है या कोई और ब्राउजर है, वो ब्राउजर वेब रिसोर्सेज जो आपने जो ई रिसोर्सेज रखा है ऑनलाइन, उन ई रिसोर्सेज को आपको शो करता है, डिस्प्ले करता है, आपको पढ़ने में मदद करता है, उसके पेजेज को खोलता है, ओपन करता है। ब्राउजिंग मीन्स ओपनिंग। अब क्वेश्चन है कि अगर आपने अपना कोई इस तरह का कंटेंट, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल है, ई जर्नल है, ई थीसिस है या ई पेपर है, कुछ भी आपने अगर बनाया हुआ, देन अपना खुद का हम लोग कैसे कोई रिसोर्स बनाएंगे, तो उसके लिए हमें एड्रेस, उसके लिए हमें स्पेस परचेज करना पड़ेगा इंटरनेट पर, और आईएसपी की मदद से, कोई ना कोई हमारा लोकल आईएसपी होगा, आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो हमें स्पेस प्रोवाइड करते हैं, और उसकी वो हमसे एनुअल कास्ट लेते हैं। तो नॉर्मली जितनी भी आपकी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल है, बीएसएनएल है, या हच है, ये सारे कंपनियां, ये सारे जो आईएसपी हैं, दे हेल्प अस टू गेट द स्पेस ऑन द यूआरएल। मैं आपको दो बातें बोल रहा हूँ, एक यूआरएल, यूआरएल माने जो हमारा हमारा आईडी होगी, जो हमारा अविटार होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एविटार। एविटार माने जो आपका डिस्प्ले आईडी होगी, किस नाम से हमें इंटरनेट दुनिया में देखा जाएगा। जैसे आगरा यूनिवर्सिटी को इंटरनेट पर किस नाम से देखते हैं, तो इंटरनेट पर हमारी आईडी है dbrau.org.in। इंटरनेट पर दयालबाग इंस्टीट्यूट की क्या आईडी है, तो वहां है dei.ac.in। तो ये मैं यूजर नेम की बात कर रहा हूँ। तो आपकी वेबसाइट को जो आपने अपना कंटेंट रखा हुआ है, चाहे कोई वो मूवी हो, बुक हो, उसकी क्या आईडी है, वो यूआरएल कहलाता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि उस यूआरएल में 4 नेम होते हैं, इट्स प्रोटोकॉल नेम, इट्स डोमेन नेम एंड यूजर नेम, और उसका कैटेगरी। आज हम उस यूजर की कैटेगरी के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा रिसोर्स किस कैटेगरी का है। नॉर्मल कैटेगरीज आपको मालूम होगा कि अगर आपने कोई रिसोर्स कॉमर्स, कोई ऐसी कॉमर्शियल कोई रिसोर्स है, तो उसके डॉट कॉम, उसको उसकी पहचान डॉट कॉम से होती है। ऐसे ही डॉट इन होता है, ऐसे ही डॉट ईडीयू होता है एजुकेशन के लिए। अगर आपका ई रिसोर्स या कंटेंट कोई 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 एजुकेशन से रिलेटेड कोई मटेरियल हो, जैसे साइंस की कोई चैप्टर या फिर कोई थीसिस, तो हम उसको एडयू, माने जो उसका यूआरएल होगा वो ईडीयू ग्रुप में होगा, ईडीयू एजुकेशनल। ऐसे ही बहुत सारे हैं, मैं उनके डिटेल के बारे में अभी आऊंगा। बट कोई ना कोई एक यूआरएल, उस यूआरएल पर हमें स्पेस चाहिए, माने उस यूआरएल में हमें, वेब सर्वर पर हमें स्पेस चाहिए। स्पेस एक तरह की मेमोरी है। जैसे आपको कंप्यूटर में कोई फाइल या फोल्डर स्टोर करने के लिए, रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए, वो स्पेस आपकी हार्ड डिस्क में होगा,
या फिर रैम, खैर परमानेंट, ये तो टेम्पररी मेमोरी है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी ड्राइव में या एसडी कार्ड में कहीं ना कहीं आप कोई फाइल रखते हैं, उसके लिए मेमोरी चाहिए। तो ऐसे ही अगर ऑनलाइन कोई भी कंटेंट या रिसोर्स आप होस्ट करते हैं, रखते हैं, तो उसके लिए यू नीड सम स्पेस। आपको एमबी में, या अगर बहुत बड़ा रिसोर्स है तो गीगाबाइट में, और बड़ा रिसोर्स है, बहुत बड़ा विशालकाय कोई लाइब्रेरी है, तो फिर पेटाबाइट, हेक्साबाइट, यानी बहुत मेमोरी की बड़ी-बड़ी पावर्स, लिमिटेड लिमिट्स हैं, उसमें आप उन स्पेस को मेंटेन करते हैं और उनकी कॉस्ट ये लगते हैं। जैसे-जैसे स्पेस की डिमांड आप बढ़ाएँगे, आपको ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है कि जो आपने ई कंटेंट या ई रिसोर्स लिखा, चाहे वो रिसर्च जर्नल है या कोई बुक, ई बुक, वो कैसे होस्ट होगी? माने अभी तो आपने केवल स्पेस खरीद लिया है, उस पे आपका अभी मटेरियल गया नहीं है, तो आपके कंप्यूटर से, जिसमें आप अपने अपने कंप्यूटर में जहां आपने रखा है वो बुक या वो ई बुक या ई जर्नल या वो रिसर्च पेपर सर्वर पर कैसे जाएगा? तो उसके लिए हमें एफटीपी प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, या हम अपलोड करेंगे, हमें अपलोड सब रूटीन में जाना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहाँ कह रहे हैं होस्टिंग। और प्रॉपरली आपका आपका ई रिसोर्स लोगों को दिखता रहे। ऐसा नहीं कि बहुत सा हजारों लाखों लोग अगर उस रिसोर्स को रिट्रीव करने की कोशिश करें, तो एक ऐसी लिमिट आए कि वो एक एरर आए, जैसे 404 या 400, यानी बहुत सारे लोग जैसे ही देखना शुरू किया, वायरल हो गया आपका ये रिसोर्स, या इम्पैक्ट फैक्टर जैसे ही उसके बढ़े, बहुत सारे लोगों ने अगर रेफर करना शुरू किया, तो फिर वो इट इज गोइंग टू ब्रस्ट, या फिर वो दिख ही नहीं रही है, इट इज गोइंग, पेज इज नॉट अवेलेबल। तो इस तरह की प्रॉब्लम या एरर ना आए, उसके लिए हमें वेब एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हालांकि वेब एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा सीधा काम ये है कि जो ई रिसोर्सेस आप ऑनलाइन रख रहे हैं, उनकी कंट्रोलिंग, उनका रेगुलेशन, उनका डिस्प्ले, मॉनिटरिंग, एवरीथिंग, कोई हैक ना कर ले, ये सारी चीज, उनकी सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा इसका पार्ट होता है। बट अभी बिगिनिंग फेज में अगर हम लोग देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने प्रोग्रामिंग करके या फ्रंट पेज टूल यूज करके हमने ई कंटेंट बना लिया है, और हमारे पास कोई अ, एक फ्री ऑफ कॉस्ट या पेड स्पेस है, जहां पर कि हम अपने ई कंटेंट को रख सकते हैं, ये टेस्टिंग करने के लिए कि वो कैसे लॉन्च हो रहा है इंटरनेट की दुनिया में। तो हमारे पास एक ट्रायल यूआरएल और उसका स्पेस है, ये इमेजिन हम कर लें। तो क्वेश्चन ये आया कि हम ये प्रैक्टिकली ये काम कैसे करेंगे आगे अपने ई रिसोर्स को लॉन्च या पब्लिश करने के लिए। ई रिसोर्सेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारे सर्च इंजन का हेल्प लेना पड़ेगा। सर्च इंजन एक तरह के टूल्स होते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में अगर आपने कोई भी फाइल कभी किसी फोल्डर में कोई डेटा रखा हुआ है और हम भूल गए हैं, तो आपका जो फाइंड प्रोग्राम है, जो आपका सर्च प्रोग्राम है, मैं सर्च इंजन की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक कंप्यूटर के अंदर आपने जो वर्ड में अपने कंप्यूटर में जो आपने कहीं फाइल रखी है, तो उस फाइल को आप कैसे सर्च करते हैं, डेट वाइज या नेम से, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि आप ये एक्सप्लोर करते हैं, प्रोग्राम को ढूंढते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सर्च इंजन काम करता है। तो उस टूल को, उस सर्च इंजन को आपको अपनी ई रिसोर्सेज से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कोलैबोरेट नहीं करेंगे, तो लोगों को, दुनिया को क्या पता कि आपने कौन सा रिसोर्स या क्या कहाँ रखा है। तो ये काम कैसे होगा, इसको हम लोग, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट हमने जो लास्ट टाइम बताया था कि यू हैव टू हाइपरवाइज यानी योर कंटेंट, ये क्योंकि आप कंटेंट वर्ल्ड वाइड बना रहे हैं, ये कंटेंट स्टैंडर्ड होने चाहिए, तो उसके लिए हम लोग हाइपरवाइजिंग या हाइपरवाइजिंग सर्वर का सहारा लेंगे, कोलैबोरेटिंग सर्वर का सहारा लेंगे। आजकल बहुत सारे टेक्निक्स और यूज की जाती हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का भी हम लोग सहारा लेते हैं, एज वेल एज हम मेटा सर्च इंजन और स्टैंडर्ड सर्च इंजन का सहारा तो लेते ही लेते हैं। बट ये काम होता है कैसे? लेट अस कम एंड लेट अस लर्न टू सी इट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भी हमने वेब रिसोर्स पर अपना नॉलेज रखा हुआ है, कंटेंट रखा हुआ है, चाहे वो ई बुक है, कॉमिक है, कोई पोयम है, या कोई थीसिस है, ई थीसिस या ई जर्नल या रिसर्च पेपर, कुछ भी, वो किस इंटरनेट पर किस डीटीडी में जाएगा। डीटीडी का मतलब ये हुआ कि जो हमने इंटरनेट है, उस पे हमने बहुत सारे क्लासिफाई डोमेन बनाए हुए हैं।
सारा का सारा इंटरनेट का नॉलेज एक ही सर्वर पर एक ही जगह स्टोर नहीं है कि अमेरिका में या व्हाइट हाउस में, पेंटागन में या फिर जर्मनी में कहीं एक जगह एक सर्वर, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये एक बहुत सारे सर्वर वेब सर्वर्स हैं, जैसे गूगल उनमें से एक है, याहू उनमें से एक है, अल्टा विस्टा उनमें से एक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे, ऐसे हजारों सैकड़ों सर्वर्स जो कि अलग-अलग लोकेशन में रखे हैं। हो सकता है कोई ऑस्ट्रेलिया में रखा हो, किसी का लोकेशन यूएसए हो, तो इस तरीके से वो फिजिकली प्लेस्ड हैं। लेकिन उनके साथ-साथ हमने कहाँ क्या नॉलेज रखा है, वो भी हमने लॉजिकली डिफाइन किया हुआ है, जिनको हम लेबल्ड डोमेन बोल रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड सभी के लिए क्रॉस लाइन डिफाइंड यानी लेबल्ड डोमेन है। अब ये लेबल्ड डोमेन कुछ बिगिनिंग में इस तरह से डिफाइन किए गए थे कि कॉमर्शियल पर्पज से जो कोई भी कंटेंट या नॉलेज रखा गया है उसके लिए डॉट कॉम, सरकारी दस्तावेजों के लिए उनको उनके होस्टिंग के लिए जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं डॉट जीओवी, डॉट गवर्नमेंट। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल या एकेडमिक कामों के लिए इट इज ईडीयू, डॉट ईडीयू। कहने का मतलब ये मेरे है कि अगर मैं कोई आर्ट, कला, संगीत या म्यूजिक से रिलेटेड कुछ भी रिसोर्स ढूंढ रहा हूँ, चाहे वो अ, कोई बुक है या कोई थीसिस है, कुछ भी, तो मुझे मिल कहाँ से रहा है ये मेरे पास आइडिया होनी चाहिए। और जब मैं अपना खुद का बनाऊंगा तो मुझे उसे प्लेस कहाँ करना है, होस्ट कहाँ करना है, ये आइडिया मेरे पास होगी। और अगर इसमें से कोई भी आइडिया मेरे पास नहीं है तो जस्ट वी आर ए ब्लाइंड यूजर, हमें कुछ नहीं पता, हम एक यूट्यूब जैसे यूजर है। हमने जो सर्च करना था सर्च किया, पूछा, और कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, वो सेंसर्ड है अनसेंसर्ड, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। इट विल बी द सिचुएशन। बट इस क्लास को एक्सप्लोर करने का पर्पज हम लोग का ये है कि हमें ये आइडिया हो कि जो ई रिसोर्स आप पा रहे हैं वो बेसिकली ई रिसोर्स का मेन सोर्स कौन सा क्लास, कौन सी कैटेगरी, कौन सा प्लेस है। तो बहुत सारी कैटेगरीज हमने आपके ग्रुप के लिए दिखा रहे हैं। उसमें सोशल साइंसेस यानी आर्ट्स ग्रुप के लिए डॉट एसओसी नाम का ग्रुप बना हुआ है। इसी तरीके से जो साइंस से रिलेटेड नॉलेज है, कंटेंट है, मे बी बोटेनिकल साइंसेस हो, लाइफ साइंसेस हो, या फिर बेसिक साइंस हो या केमिकल साइंसेस हो, वो सारा का सारा डॉट एससीआई ग्रुप में होल्ड होगा, सर्वर पे रखे जाएंगे। पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस, चूंकि ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस की इजाद है, तो उन्होंने अपने लिए एक खास अलग से ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है डॉट कॉम, COMP। एंड म्यूजिक, मूवी, आर्ट, क्रिएशन, इस तरह की के स्टोरेज के लिए, जैसे पॉप, जैसे बहुत सारे क्लासिकल सॉन्ग हो सकते हैं, इस तरह का कलेक्शन एल्बम हो सकता है, भजन, गीत, गायन हो सकता है, कोई वादन, इस तरह की भी चीजों को आप ऑनलाइन आपको मिलेगा कंटेंट के रूप में। यू विल गेट इट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड। लेकिन वो स्टोर कहाँ है, रखा कहाँ है, उसके लिए उन्होंने अलग से एक क्लास बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही ग्रुप रखा हुआ है और उसी महा लाइब्रेरी में कॉमर्शियल, सरकारी दस्तावेज, एजुकेशनल, एवरीथिंग वुड बी देयर। इट इज नॉट एट ऑल। उनके लिए अलग से ग्रुप बनाया हुआ है रिक्रिएटिव। अगर इनको काउंट करेंगे आप शुरू से तो इट विल बी कमिंग 8। आप देख लीजिए, इसीलिए 8, ऑक्ट, ऑक्ट मीन्स 8, यानी इनको हम लोग बिग ओबी बोलते हैं एक तरह से, कि दे आर द बेसिकली 8 ग्रुप्स, इनिशियली 8 ग्रुप्स were created to host, to place the knowledge of world knowledge, यानी ई रिसोर्सेस को होल्ड करने के लिए जो ऑनलाइन वेब सर्वर्स पर जो अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, अलग अलग नॉलेज के क्लासेस बने हुए हैं, वो ये बेसिकली 8 हैं। और उसमें से एक ग्रुप लास्ट वाला देखिए, वो अल्टरनेटिव ग्रुप है। वो इसलिए उन्होंने सोच के बनाया था कि भाई शुरू में उन्होंने 7 बना दिए और 8वां उन्होंने रिजर्व रखा था कि जितने हम टाइप के नॉलेज की बात कर रहे हैं दुनिया में कि इतने टाइप का नॉलेज है, साइंस का नॉलेज है, सोशल साइंस का नॉलेज है, इसके बियॉन्ड भी अगर कोई नॉलेज और दिखाई दिया या तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से ग्रुप बना के ग्रुप को उन्होंने रिजर्व ग्रुप के रूप में रखा था, अल्टरनेट। तो ये सारा चीज है। लेकिन केवल ग्रुप ही नहीं, बल्कि आपको मैं आइडिया ये भी दे दूं कि हम अपने ई रिसोर्स को प्लेस करने के लिए फिर हम सब ग्रुप भी बनाते हैं। जैसे कुछ जो नए ग्रुप्स आए हैं इसके अलावा जो ऐड हुए हैं, वो कुछ ग्रुप इस तरह से, जैसे इंडियन, अगर इंडिया की मैं बात करूं तो डॉट इन है। और अगर अब इंडिया में रहते हुए मैं अगर एजुकेशनल की बात करूं या यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो हमें हमें वो हमें कौन सी कैटेगरी मिलेगी, यानी हमारा रिसोर्स कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा डॉट AC डॉट इन।
अब जैसे अगर हमारी आगरा यूनिवर्सिटी तो उसको उसका यूआरएल क्यों डॉट एसी डॉट इन मिला हुआ, अगर मैं उसके पूरे यूआरएल को पढ़ूं तो आगरा यूनिवर्सिटी का यूआरएल है dbru.ac.in। अब ये लास्ट में जो सफिक्स लगा हुआ उसको ध्यान दीजिए, जिसको मैं लेबल्ड डोमेन बोल रहा हूं, वो है .ac.in। इसका मतलब मैं एकेडमिक केवल कंटेंट सर्च कर रहा हूं, और वो भी केवल इंडिया के कंटेक्स्ट में। आई एम नॉट गोइंग टू सर्च द होल ग्लोब, द होल अर्थ आर द एंटायर वर्ल्ड। तो टाइम कम लगेगा अगर आप इसी को इफ यू आर सर्चिंग सम एकेडमिक्स, कोई आप एकेडमिक्स नॉलेज सर्च करिए, बट यू सर्च इन द होल वर्ल्ड, देन it will search also in Australia, it will also search in England as well as Russia and USA. It will take, the search will take a lot of time. So that's why this grouping is done, that's why this classification has been done। और सब ग्रुप भी इसीलिए बनाया गया है सो दैट कि आपकी सर्च ज्यादा फोकस्ड हो और क्विकर हो, जल्दी से जल्दी आप अपने सोर्स तक पहुंच पाए, और वहां से जो नॉलेज का एक्विजिशन है, जो नॉलेज का रिट्रीवल है, यू कैन गेट इट क्विकली, आपको ये मिल सके। अब कितने लोग इस समय कनेक्टेड हैं, इतनी सारी बातों को हम रिट्रीव कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है और उसको मार्किंग करने के लिए ये क्वेश्चन 1 मिनट आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। इसका आंसर चैट बॉक्स अभी जैसे ही खुलेगा आप इसका देंगे। याद रखिए कल एक क्वेश्चन हमने शेयर किया था, उसके आंसर को भी आप दीजिएगा। अगर आप नहीं आंसर दे पा रहे तो भी कम से कम यू शुड हैव टू द नॉलेज ऑफ दैट आंसर। बट आज का क्वेश्चन ये है, ये बात ये हो रही है कि जो हमने वर्ल्ड के कैटेगरीज डिफाइन किए हुए हैं अपने ई रिसोर्स को होस्ट करने के लिए, यानी रखने के लिए वेब सर्वर्स पर, जिनको हमने कहा है TLD, टॉप लेवल डोमेन, उनकी हमने बेसिकली प्राइमरली 8 कलर्स बनाए, 8 डिविजन्स बनाए हैं। आप इनको वैसे ही कलर से माने का आप एनालॉजी कर सकते हैं कि बेसिक बीप के 7 कलर होते हैं, और बाकी कलर तो आप सेट्स से डिराइव करते हैं कि ये रेड है तो ये पिंक, ये लाइट रेड है, मैरून रेड है, ये है। जस्ट बाय चेंजिंग द इम्यूनिटी, इल्यूमिनेशन, कंट्रास्ट एंड द अदर क्रोमेटिज्म, आप एक ही कलर के हजारों रूप पा लेते हैं। ग्रीन कलर है बट उसी के बहुत सारे सेट्स जैसे पा लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इनिशियली ये 8 ही ग्रुप हैं, जैसे एडीयू की हमने बात करी या हमने गवर्नमेंट की बात करी, बट उसके आगे सब डिवीजन करते हुए बहुत सारे ग्रुप्स, हजारों डोमेन आज की डेट में है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि जो ये टॉप लेवल डोमेन, यानी जो 8 कैटेगरीज हमने ऊपर बनाई, बताई क्या था वो 8 कैटेगरीज, इफ यू कैन रिकॉल। सोशल साइंस वालों के लिए SOC, एजुकेशन के लिए EDU, इस तरह से आर्ट रिक्रिएशन, आर्ट्स एंड म्यूजिक के लिए, मूवीज पर्सन के लिए, और एक रिजर्व भी आपको याद होगा, वो इट वाज द आर्ट। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसको डेवलप किसने किया था। तो क्वेश्चन आपका ये है कि व्हेन दीज टॉप लेवल डोमेन वेयर डेवलप्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ वेब बेस्ड ई रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट। इंटरनेट की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ये इंटरनेट की मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट पर, यानी जब मैं ऑनलाइन ई रिसोर्सेज की बात कर रहा होऊंगा तो ये जो 8 डोमेन्स हैं जिसको हमने टॉप लेवल डोमेन कहा है, इनकी स्थापना या इनका विकास कब किया गया, ये आंसर्स आपको देने हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं 1885, 1985, 2014, और एक ऑप्शन हम लोग रखे हैं नन ऑफ दीज। इसका रिस्पांस आपके अटेंडेंस को मार्क करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कुछ भी आप ई रिसोर्स होस्ट करेंगे, कहाँ होस्ट करेंगे, जो आपने एड्रेस लिया है, एड्रेस आपको कौन देगा, यूआरएल कौन आपको मुहैया कराएगा, आपका लोकल आईएसपी जहां आप रहते हैं, यहाँ वहां कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा इंटरनेट का, जो आपको वो यूआरएल दे देगा, और उस यूआरएल पर ही, उस वेब एड्रेस पे ही आपको अपनी वेब पेजेज को, अपने कंटेंट को रखना है। अगर आप ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप वेब होस्टिंग का काम कर रहे हैं। बाद में आप उसकी अपडेशन भी करेंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे, उसको उसकी सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ करेंगे। बट मेन एम आगे का ये है कि आपने जो कंटेंट वहां रखा, अब वो कंटेंट लोगों तक कैसे पहुंचेगा। तो उसके लिए रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल सर्च इंजन का होता है। यानी एज ए रिसीवर, क्लाइंट के पास, क्लाइंट को कैसे नॉलेज मिलेगा, क्लाइंट आपके रिसोर्स तक कैसे पहुंचेगा। तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं, जिन टूल्स की मदद से, जिन प्रोग्राम की मदद से हम
हम किसी भी रिसोर्सेज को ढूंढते हैं। जैसे इमेजिन करिए कि आप लोग अभी कुछ लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं और आपको किसी टाइटल या किसी डोमेन के किसी टॉपिक पर कुछ आपको सर्च करके लाना है, तो आप गूगल का सहारा लेते हैं ना, तो या किसी न किसी सर्च इंजन का सहारा लेते हैं। जो लोग थोड़े ज्यादा चालाक है, वो हो सकता है कि गूगल इसका एडवांस गूगल का सहारा लेंगे, एडवांस गूगल सर्च करेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, वो शायद चैट जीपीटी की तरफ जा सकते हैं। यानी इस तरह के जो सर्च इंजन के टूल्स हैं, उनका आप हेल्प लेते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू सी दिस। और दूसरी बात कि ये सर्च इंजन वर्क कैसे करते हैं, आप सोचिए। अभी हम लोग चैट जीपीटी यूज कर लेते हैं और आपको धड़ से आंसर मिल जाता है और आपको लगता है कि हमने सही आंसर बता दिया। बट जो बेसिक क्लासिकल बात है कि ये सर्च इंजन, ये चैट जीपीटी, ये वर्किंग अपना के हाउ इट इज सर्चिंग, बहुत सारा ये रिसोर्स दुनिया भर के वेब सर्वर्स में इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, बट ये आपके पास तक ये नॉलेज कहाँ से आ रही है? और आज की डेट में मैं बताऊं कि केवल ये नॉलेज आपके पास नहीं आ रही है कि ये रिसोर्स यहाँ पड़ा हुआ है, या क्वेश्चन आपने दिया आपको आंसर मिल गया, बल्कि वो आपको हाइपर गाइड भी करता है कि अब आप और क्या सर्च करना चाहते हैं। यानी वो सब्जेक्ट से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड भी कुछ गाइडेंस भी आपको देता है, सुपरविजन भी देता है, आपको बताता है, आपको हेल्प करता है कि आप ये भी सर्च करिए, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ भी ऐसा भी कुछ पढ़ सकते हैं या ऐसा भी कुछ वॉच कर सकते हैं अगर वो वीडियो है तो यू कैन इमेजिन द रोल ऑफ दिस सर्च इंजन्स, मे बी द स्टैंडर्ड आर मेटा सर्च इंजन। और आप ये भी यहाँ पर यू कैन आल्सो हाईलाइट कि हाउ दिस दे वर्क। तो चाहे वो कैसे भी सर्च इंजन है, कुछ सर्च इंजन ऐसे हैं जो केवल टेक्स्ट, आपको टाइप करना ही करना पड़ेगा, जो जो कुछ आप टाइप करेंगे उसको वो सर्च करते हैं। मैं कुछ का नाम यहाँ ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो लोग सुनने में अलर्ट नहीं है वो शायद इस कंटेंट को मिस कर जाएंगे। तो जो मैं अब नाम ले रहा हूँ सर्च इंजन का, वो होंगे केवल टेक्स्ट वाले सर्च इंजन। इस पर क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन केवल टेक्स्ट सर्च इंजन है, वो वीडियो या इमेज या लेंस बेस्ड नहीं है। गूगल में याद रखिए आजकल लेंस की फैसिलिटी है, आप केवल गूगल लेंस के सामने कोई पैटर्न, कोई क्यूआर कोड, कोई पिक्चर, कोई इमेज रख देंगे तो वो वैसा और कहाँ-कहाँ है वहां से आपको वो सर्च कर सकता है। सर्च माने वो लेंस, गूगल लेंस भी यूज किया जाता है सर्च करने के लिए। ऐसे ही आप वॉइस का सहारा, माइक का सहारा ले सकते हैं। आप लिखने के बजाय आप बोल सकते हैं, तो जो आप बोलेंगे वो सर्च कर लेगा। तो यूट्यूब में फैसिलिटी होती है कि आप चाहे तो लिखने के बजाय आप बोल दीजिए और आपका सर्च इंजन काम करेगा। तो मैं आपको यहाँ हाईलाइट करना चाहता था कि अगर हमने कोई ई रिसोर्स बनाया है और मुझे उसमें से कुछ ढूंढना है, तो मैं टेक्स्ट वाले सर्च इंजन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कैसे वो वर्क करेगा। तो लिंक्स है, लिंक्स ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही पसंदीदा सर्च टूल है। लिंक्स, LYNX। ऐसे ही है लाइकोस, मेडिसिन से रिलेटेड या डिसीज से रिलेटेड इलाज, आराम पाने के लिए कौन सी दवा का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या फार्मूला है, उसका डिटेल्स आप जान सकते हैं लाइकोज पर। तो लिंक्स और लाइकोज, इसी तरीके का एक और सर्च इंजन है, उसका नाम है गोफर। इसका मतलब है गो फार, यानी जो मैं लिख रहा हूँ उसके लिए सर्च करने के लिए जाओ। जैसे गो फार म्यूजिक, इसका मतलब मैं म्यूजिक ढूंढ रहा हूँ, गो फार पॉप म्यूजिक या गो फार भजन। तो केवल जो मूवीज में से या बहुत सारे ऑडियो ऑडियो रिसोर्सेस होंगे, लेकिन उस रिसोर्स में केवल वो भजन को सर्च करेगा, बाकी को हटा देगा, बाकी को डिलीट कर देगा, बाकी को वो आउटलाइन कर देगा। डिलीट करने का मतलब आउटलाइन। जैसे हमारे पास 10 एल्बम में हमारे पास 10 या 100 गाने हैं, लेकिन उसमें से केवल 2 गजल या भजन है, और मैं अगर सर्च कर रहा हूँ ओनली फॉर भजन, तो केवल 100 में से वो 2 केवल इंडेक्स होंगे, केवल 2 उस फिल्टर होके निकल के आएंगे, बाकी नहीं, 98 वो नहीं दिखाएगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द सर्च इंजन। ऐसे ही बहुत सारे सर्च इंजन है जो इमेज पर काम करते हैं। तो हमने गोफर की बात करी, लिंक्स और लाइकोज की बात करी। ये अलग अलग सेक्टर के अलग अलग एरिया के मैं सर्च इंजन के बारे में बता रहा हूँ, और वो टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन है। मेटा सर्च इंजन भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने ई रिसोर्स में, यानी आपके ई रिसोर्स तक पहुंचने
मैं कम से कम टाइम खर्च करूँ, मैं क्यों इधर-उधर भटकूँ, मैं फास्ट सर्च कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए हम लोग मेटा सर्च, अब आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या होता है कि मेटा सर्च इंजन बहुत जल्दी हमारे पास तक सर्च कर लेते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई यूपी या किसी स्टेट में कोई एक क्रिमिनल पर्सन है, उसको सर्च करना है, कुछ ने कुछ क्राइम किया और क्विकली पुलिस चाहती है कि उसको सर्च कर ले। तो वो अ, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लेने वाले सर्चिंग टूल का अगर इस्तेमाल करेगी तो प्रॉब्लम आएगा, वहाँ पर हमें जल्दी से जल्दी अपराधी तक पहुँचना है या उस पर्टिकुलर पर्सन तक पहुँचना है, तो हम उसके लिए ऐसा सर्च इंजन चाहेंगे जो क्विकली वहाँ तक पहुँचे। तो मेटा सर्च इंजन वैसा ही काम करता है। अब ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेटा सर्च इंजन बेसिकली इंडेक्स सर्चिंग करते हैं। दे वो हैश सर्च करते हैं। मतलब इसका ये हुआ, कहने का मतलब ये है कि हैश सर्चिंग या इंडेक्स सर्चिंग का मतलब ये है कि हम एक तरफ से यहाँ से वहाँ या ऊपर से नीचे या इस साइड से उस साइड तक इस तरह की सर्चिंग नहीं कर रहे हैं। जो क्लू हमें मिल रहा है उस क्लू से रिलेटेड कौन सा पर्सन सटीक बैठ रहा है, उस एड्रेस, उस इंडेक्स, उस लोकेशन, उस गली मोहल्ले तक हम जाने की कोशिश करेंगे और सर्चिंग क्विकली आपकी हो जाएगी। तो जो कुछ क्लू, यानी कहने का मतलब, क्लू का मतलब जो पैरामीटर आप सेट कर रहे हैं, उस पैरामीटर से सुटेबल मैचिंग कौन हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आई विल जब मैं ऐसी सर्च करूँगा तो बिल्कुल फ़ोकस्ड, बिल्कुल टारगेटेड ई कंटेंट मुझे मुझे मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप, बहुत सारे लोग आप में से साइंस पर कोई सिनॉप्सिस तैयार करना चाह रहे हैं या कुछ रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं। अब तो दुनिया भर का नॉलेज तो पड़ा हुआ है, किसी भी साइंस में आप चले जाइए। जैसे अगर आप आइंस्टाइन मैकेनिक्स या किसी फील्ड को ढूँढ रहे हैं तो, या फिर अ कहीं और जेनेटिक्स अ, से रिलेटेड कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं या बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड कोई आप सर्चिंग कर रहे हैं तो बहुत सारा नॉलेज होगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली अगर आप जीन मैपिंग या एग्जैक्टली आप जीन क्रॉपिंग की बात अगर सर्च करना चाहते हैं या फिर कैसे आपका ब्लास्ट और फास्टा एल्गोरिथम काम करता है जेनेटिक राइटिंग में या जीन कंप्यूटेशन में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो एग्जैक्ट आपको उस एल्गोरिथम तक वर्क करना है। अगर कोई कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है जो मुझे समझ पा रहा है, तो एग्जैक्टली अगर आपको कोई मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम एक्विजिट करना है, ढूंढना है, और एग्जैक्टली अगर आप सीएफ एल्गोरिथम या फिर आपका जो एप्रियरी एल्गोरिथम है, अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो आपको इधर-उधर सर्च नहीं करना है, एग्जैक्टली आपको उस पर्टिकुलर एप्रियरी एल्गोरिथम तक पहुंचना है। तो आप उसके लिए इंडेक्स या हैशिंग का सहारा लेते हैं। ठीक है? जैसे हमारे पास कैलेंडर में 365 दिन है, लेकिन मैं हैशिंग करना चाहता हूँ साल के 75वें दिन पे, तो सीधे-सीधे कैलकुलेट करेगा, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 30 दिन, या एक ऐसे-ऐसे काउंट करके सीधे-सीधे वो 75वें दिन के पास जाएगा। तो दिस इज़ द बेसिकली ब्यूटी ऑफ द हैशिंग। तो हैशिंग टूल्स और इंडेक्सिंग टूल की मदद, चूँकि ये इम्प्लीमेंटेड होता है आपके सर्च इंजन में, जिसको मैं मेटा सर्च इंजन का नाम दे रहा हूँ, तो इसलिए आपकी सर्चिंग एबिलिटी फास्ट हो जाती है। कहीं-कहीं पर आपने एससीओ का भी नाम सुना होगा, जिसको हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। माने वहाँ भी हम बहुत सारे आउटलायर यूज़ करते हैं। इधर-उधर की जो अ, अनवांटेड एलिमेंट है वो आप हटा देना चाहते हैं और आप फोकस्ड सर्चिंग करना चाहते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दिया कि आप डोमेन और सब डोमेन का कैसे यूज़ करके अपने ई रिसोर्स को बहुत अधिक यूज़फुल, या आप कह सकते हैं कि फास्ट एक्सेसिंग वाला बना सकते हैं। फास्ट एक्सेसिंग का मतलब क्विकली कोई कोई कस्टमर, कोई सब्सक्राइबर आपके ही रिसोर्स तक कैसे पहुंच सकता है, या आप खुद अभी रिसर्चर हैं तो आप किसी भी ऑनलाइन नॉलेज या ऑनलाइन रिसोर्स के पास कैसे पहुंच सकते हैं। लास्ट में आपको ये हिंट देना चाहूंगा कि आप कभी-कभी ऑपरेटर का भी सहारा लेते हैं। जैसे इंटरनेट पर अगर आपको कोई दो चीजें सर्च करनी है तो एंड ऑपरेटर का सहारा लेते हैं, या आइदर आर सर्च करनी है तो आप आर ऑपरेटर का सहारा लेते हैं। तो प्लस माइनस, या जैसे आपको कोई फाइल ढूँढनी है इंटरनेट पर जिसमें खाली पीडीएफ फाइलें आप ढूँढना चाहते हैं, अदर नहीं, तो आप प्लस और जो भी टाइटल ढूँढना हो, जैसे आपको ताजमहल के बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन केवल पीडीएफ फाइलें आप ढूँढना चाहते हैं, तो आप लिख दीजिए ताजमहल, उसके आगे लिखिए प्लस पीडीएफ, तो केवल पीडीएफ फाइलें ही सर्च इंजन आपको लाके दिखाएगा, बाकी सारी फाइलों को वो आउटलायर कर देगा, वो ओमिट हटा देगा अपने अपनी लिस्ट से। तो इस तरीके से आप, और कुछ लोग तो डायरेक्ट सर्च भी करते हैं, आप में से जो लोग आईपी एड्रेस के बारे में जानते हैं, हालाँकि हमने आपको 2 दिन पहले आईपी एड्रेसिंग
इंटरनेट की कैटेगरीज ए बी सी डी ई। आपको याद होगा, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, डी मतलब ऐसा इंटरनेट जिसको जो रिसर्चर और डेवलपमेंट के लिए रिजर्व किया गया है, और ई टाइप का इंटरनेट जो इंटरकास्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए रिजर्व किया गया है। तो हम जो एड्रेसेस की बात कर रहे हैं, इंटरनेट के टाइप्स एबीसीडी की बात कर रहे हैं, तो उन जो एड्रेसेस इंटरनेट के होंगे, आईपी एड्रेसेस जिनको हम लोग कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं, अगर वो एड्रेस मुझे याद है। अब आगरा यूनिवर्सिटी का नाम तो सभी को याद होगा कि वेब पोर्टल पर आगरा यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, dbru.ac.in। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है https://www/dbru.ac.in। ये 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें प्रोटोकॉल का नाम है, डोमेन का नाम है, यूजर का नाम है और उसकी कैटेगरी है, उसका ग्रुप है। हमारी यूनिवर्सिटी का ग्रुप क्या है? .in। तो ये सारी चीजें, तो इनके इनके बाइनरी नेम क्या हो, बाइनरी एड्रेस क्या होंगे, वो थोड़ा मुश्किल होगा, नंबर्स में होगा, तो उन्हीं को हम आईपी एड्रेस कह रहे हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट वो एड्रेस याद है तो आपको इधर उधर बिल्कुल सर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप पूरे आगरा में अगर आप केवल खंडारी लोकेशन को लोकेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ का जो पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो यहाँ का पिन नंबर है 282002, आपको इस एड्रेस से ढूंढना पड़ेगा। अगर आप पालीवाल पार्क को एलोकेट करना चाहते हैं, तो जियोग्राफिकली आपको जो वहां का पिन नंबर है, जो पोस्टल इंफॉर्मेशन नंबर है, जैसे 282004। अब देखिए, दोनों लोकेशन आगरा यूनिवर्सिटी की है, लेकिन कैंपस अलग अलग है। तो खंडारी कैंपस का पिन कोड है 2 और पालीवाल पार्क का है 4। छलेसर कैंपस का मुझे नहीं मालूम, कुछ और होगा। ऐसे ही ललित कला का कुछ और होगा। तो यूजर एक ही है, लेकिन उसका जो एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस, जियोग्राफिकल एड्रेस, वो डिफर है। तो अगर ये आइडिया मुझे हो जाएगा, तो इसी तरीके से अगर भले ही वो थीसिस एक ही पर्सन की है या एक ही लाइब्रेरी है, लेकिन अगर उसके अलग अलग कंटेंट के आईपी एड्रेसेस मुझे मालूम होंगे, तो उस थीसिस के पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं सीधे पहुंच सकता हूँ। किसी थीसिस के मेथोडोलॉजी पर आप सीधे पहुंच सकते हैं उस आईपी उसके आईपी एड्रेसिंग से। तो ये आइडिया मैं आपको देने की एनालॉगस एग्जांपल दे करके ये मैं आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में थोड़ा सा आ जाए कि प्रैक्टिकली हम लोग अपने ई रिसोर्सेज को कैसे, उसका एक्विजिशन कैसे करते हैं। मैं बार बार ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि ई आर एम जो हमने पढ़ा था, उसका मतलब यही है कि ई रिसोर्सेज को आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उसका रिटेंशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन, कैटलॉगिंग, एक्विजिशन एज वेल एज सर्चिंग। आप लाइब्रेरी में भी जाते हैं, इन्हीं सारी चीजों से आप जूझते हैं। जैसे आपको कोई बुक ढूंढनी है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? बुक सर्चिंग। तो हाउ यू सर्च द बुक? तो यू सर्च ए बुक इन द क्लासिकल लाइब्रेरी विद द हेल्प ऑफ कैटलॉग। तो जैसे कैटलॉग आपकी मदद करता है, ऐसे ही ये जो आप हमने कैटेगरीज यहाँ बनाई है, .com, edu और आईपी एड्रेसिंग करी है, इंटर और सर्च इंजन आपके सामने दिए हैं, तो बेसिकली दे डू द हेल्प इन द सेम वे हाउ यू टेक द हेल्प इन ए क्लासिकल लाइब्रेरी इफ यू हैव विजिटेड। हर क्लासिकल लाइब्रेरी में हर बुक की आइडेंटिटी के लिए एक कैटलॉग आईडी बनी होती है, और सारे कैटलॉग्स जितनी भी किताबें हैं, उन सभी के जो कार्ड होंगे आपके एक कैटलॉग में अथरवाइज, और दूसरे जगह पर वो टाइटल वाइज, जिस सब्जेक्ट की बुक है उनके टाइटल वाइज, केमिस्ट्री की बुक है, कंप्यूटर साइंस की बुक है, होम साइंस की बुक है या जियोग्राफी की बुक है, उसके हिसाब से वो कैटलॉग में रखे रहते हैं। लाइब्रेरियन का एक बड़ा काम कैटलॉगिंग का है। तो ये वाला काम इंटरनेट पर कौन कर रहा होगा? आपके महा ई रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि इंटरनेट एक लाइब्रेरी तो है नहीं, इंटरनेट का ई रिसोर्स एक लाइब्रेरी तो है नहीं, इंटरनेट का ई रिसोर्स तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी, वर्ल्ड की लाइब्रेरी। जैसे जेस्टर को आप देखिए, जैसे आप हिंदावी को देखिए, शोध गंगा को देखिए, शोध ग्रंथ को देखिए, आपको क्या ये मामूली वेबसाइट्स नजर आती हैं? नहीं, ये एक ऐसी महा वेबसाइट, महा नॉलेज के रिसोर्सेज है और ऑनलाइन अवेलेबल है। तो बेसिकली हाउ दे वर्क, यू आई एम ट्राइंग टू गिव यू द आइडिया ऑफ दिस, और उनके लिए जो टूल्स क्या है उनकी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। नाउ लेट अस चेक कितने लोग इधर उधर फोकस्ड हैं, कितने लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और कितने लोग ध्यान दे रहे हैं। उसके लिए ये क्वेश्चन 1 मिनट का आपके सामने आ रहा है। हु इज द ओनर ऑफ .in डोमेन ऑफ वेब ग्रुप? याद रखिए, .in बेसिक ग्रुप में नहीं आता है। बेसिक ग्रुप में 8 अलग थे, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो नए जो लेबल डोमेन डिफाइन किए गए हैं, उसमें इन एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। और इस .in ग्रुप का मालिक कौन है?
आपको बताना है और ये क्वेश्चन का आंसर बताएगा कि आप मुझसे कनेक्टेड थे या कनेक्टेड नहीं थे। नाउ वी विल टेक द हेल्प ऑफ विकास जी की, और ये ओपन करने के लिए मैं बोलूंगा विकास जी 4-5 मिनट बाकी है, आप ये इंश्योर करने के लिए कि ये लोग आंसर दे पा रहे हैं, प्लीज ओपन द चैट बॉक्स। प्लीज विकास जी आप चैट बॉक्स ओपन करिए जिससे कि मैं अटेंडेंस इनकी देख सकूं।